morning students. All of you open your science book. All of you open your science book. Have you all opened it? All of you open your science book, chapter number 8. Chapter number 8, cell structure and function. Okay, so I have to explain you the part 8 of this chapter. So सब लोग अपनी book खोल लीजिए. Then we will start the chapter. So all of you have opened it. Now students, I have to explain you chapter number 8, cell structure and function. तो इस चैप्टर में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे सेल के शेप के, सेल के नंबर्स के बारे में और सेल के शेप्स के बारे में पढ़ाया है ना. नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन यू अबाउट द वैरायटी इन साइज ऑफ सेल्स. अब सेल के साइज के बारे में, मतलब जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के भी होते हैं. ठीक है. द सेल्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट साइजेस. दिस वी ऑल नो कि सेल्स अलग अलग साइज के होते हैं. द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी स्मॉल एज मिलियन ऑफ मीटर और मे बी इट लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स. तो बहुत डिफरेंट इनका शेप होता है. मिलियन स्मॉल्स भी हो सकते हैं और सेंटीमीटर्स के भी सेंटीमीटर्स के भी लेंथ में हो सकते हैं. Okay, and hence it cannot be seen with the naked eyes. So most of the cells found in living organisms have to be enlarged or magnified by using a microscope before they can be seen. So कुछ cells इतने छोटे होते हैं कि उनको मैग्नीफाई करना पड़ता है, then they are visible. Have you all understood? The bacteria of cells have a length of 0.1 micrometers. बैक्टीरिया सेल्स की लेंथ है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. In fact, bacteria mycoplasma is the smallest cell, having the size
हैविंग द साइज और लेंथ ऑफ ओनली 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। सम ऑफ द सेल्स आर हाउएवर बिग एंड कैन नॉट बी सीन इजीली विद नेकेड आइज। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शेप में बड़े होते हैं, बट देन ऑल्सो वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज, फिर भी हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। द बर्ड्स एग्स आर वेरी लार्ज सेल्स, each egg of the bird is single cell. For example, the hen is a single cell. The hen's egg is a quite big. The biggest cell which can be seen with the naked eyes is the ostrich egg. So the hens का और birds का egg होता है, these are also the cells. So ये सबसे बड़े cells होते हैं, ठीक है। So सबसे largest biggest cell है that can be visible with the naked eyes is the ostrich egg. The ostrich can be as 70 meters long. Ostrich का egg जो है 17 centimeters long होता है, okay? In the human body some blood cells are the smallest and nerve cells are the longest. Human body में blood सारे कुछ blood cells smallest हैं और nerve cells are the longest cells in the human body. So नीचे आपको sizes दिए हैं cells के. So mainly the conclusion from this topic is that the cells are of different sizes. Cells का कोई particular size नहीं होता है, कोई particular shape नहीं होता है, कोई particular number नहीं होता है. It varies from person to person. आप mainly ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि cell जो है person to person change होता है, different होता है. Next is cell, tissue, organs, organ system and organisms. So first is cells. What is cells? A cell is the smallest unit of life which has a definite structure and perform a specific function. This we all know कि cell जो है सबसे smallest unit है हमारी life का, जिसका कोई ना कोई जिसका different structure है, different function है, different number है, different task है, ठीक है। And it is the fundamental unit of our life which is present in all the living cells. So सब living cells में present होता है. All the cells of a multicellular organisms are not similar. जितने भी सेल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ नॉट सिमिलर. सिमिलर मतलब सेम नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. कुछ सेल्स इस तरह के भी होते हैं जिनका पर्टिकुलर फंक्शन है, जो सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही है. दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल और उनको हम स्पेशलाइज्ड सेल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट दे कैन ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स. एनिमल्स में मसल सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ हमारी बॉडी में मसल सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना. इन प्लांट फोटोसिंथेटिक सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड. तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस सेल्स होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ खाना बनाना, ठीक है, विच मेक ओनली द फूड इन आवर बॉडी. There are many types of specialized cells in animals and plants which perform different functions. So plants और animals में different तरह के cells होते हैं जिनका different function होता है. Next is tissues. What are tissues? A multicellular organisms, animals or plant is made up of millions of cells. जो multicellular organisms हैं, whether it is animals or plant, उनकी body में बहुत सारे millions of cells हैं. The cells in a multicellular organisms do not work as single cell. जो cell organisms में present है single cell है, वो कुछ multicellular cells ऐसे होते हैं कि वो single cells की तरह work करते हैं. Okay? They work in group of similar cells. वो similar cells मतलब एक सिंगल सेल की तरह वो वर्क करते हैं बॉडी पे. ठीक है. Now thus muscles tissue brings about movement in the body parts of animals. So muscles का काम होता है, जो muscles tissues होते हैं उनका काम होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट में वो हेल्प करते हैं. समझ में आ गया? In plant photosynthetic tissues is a group of photosynthetic cells joined together. Plants में photosynthetic tissue का काम होता है, वो photosynthetic cells का ग्रुप होता है जो एक साथ joint होते हैं to form the plant functions.
which is specialized to do photosynthesis and make food. तो photosynthetic cell का काम होता है, we all know that in plants photosynthesis is they make their food by the photosynthesis. तो plants में photosynthesis के थ्रू वो अपना plants अपना food बनाते हैं. So plants में photosynthetic cell होते हैं जिनका काम होता है to make the food. Okay. There are many different types of tissues in both animals as well as in plants. So animals में और plants में different तरह के tissues होते हैं. In fact, there are many types of tissues as there are cells. So different type के tissues भी होते हैं जिस तरह के cells होते हैं. Next is organs. So we all know what is organs. इसको मैं आपको in short में explain कर रही हूँ. So हमारी जो body है उस वो cell से बनी है. This we all know. तो first of all हमारे आता है एक मिनट. I'm just making a chart. So our body is made up of cell. ठीक है, सेल से क्या फॉर्म हुआ? टिश्यू. ठीक है, सो सेल्स हमारी बॉडी जो है किससे बनी है? सेल से बनी है. देन सेल से टिश्यूज बने हैं, टिश्यू से ऑर्गेन्स बने हैं. ऑर्गेन से क्या बना है? ऑर्गेन सिस्टम बना है. ऑर्गेन से क्या बना है? ऑर्गेन सिस्टम बना है. ठीक है, ये एक पूरा चार्ट है. देन ऑर्गेन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिजम्स बना है, मतलब एक पूरी बॉडी बनी है. तो अब आप देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उनमें सबसे पहले वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बना है? सेल से बना है. ओके, नेक्स्ट इज टिश्यू. उसके बाद टिश्यू जब ज्वाइन होते हैं तो दे फॉर्म द ऑर्गेन्स. जब ऑर्गेन्स मिलते हैं तो दे फॉर्म द ऑर्गेन सिस्टम, और वो ऑर्गेन सिस्टम मिला के कंप्लीट बॉडी बनाता है, कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है. ठीक है, सो यही फॉर्मेट आपकी बुक में भी, पहले सेल्स बने, सेल्स के बाद टिश्यूज फॉर्म हुए, जब सेल्स मिले तो वो एक साथ टिश्यूज फॉर्म किए, टिश्यूज मिलके ऑर्गेन्स बनाए. ठीक है, ऑर्गेन्स क्या है? जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि लंग्स, किडनीज, ब्रेन, हार्ट. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? स्टमक. दीज ऑल आर द organs. So the bodies of animals and plants are made up of different types of tissues. The different type tissues body of an animal or a part do not work separately, they forms the organs. So यही चीज मैंने अभी आपको बताया कि tissues form होके organs बनाएंगे. So an organ is a collection of different tissues which work together to perform a particular function in the body of an organism. So tissue क्या है? organs क्या है? organ जो है different body, हमारे body parts हैं जिनका काम होता है, सबका काम अलग अलग है. अब जैसे आप देख लीजिए ब्रेन का काम क्या है? हमारी मेमोरी को रखना. ठीक है, स्टमक का काम क्या है? जो फूड हम खा रहे हैं उस फूड को स्टोर करना. लंग्स का काम क्या है? एयर को इनटेक करना, एक्सहेल करना. ब्लड का काम क्या है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना और हमें जो है वर्क करने की एनर्जी देना. कि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करना, लाइफ को एग्जिस्ट करना. ठीक है, वी लिव थ्रू आवर हार्ट ओनली. सो हमारी बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट वर्क है. नेक्स्ट इज किडनीज का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना. सो एवरी बॉडी पार्ट हैव डिफरेंट फंक्शन. आईज का काम है देखना, हैंड्स का काम है लिखना, लेग्स का काम है चलना, नोज का काम है स्मेल करना. सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैव डिफरेंट फंक्शंस. और ऐसे ही सिमिलरली इन द प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स में भी है ऑर्गेन्स. प्लांट्स के ऑर्गेन्स कौन से हैं? ये तो हमने ह्यूमन बींग्स के ऑर्गेन्स के, लिविंग थिंग्स के ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ा. प्लांट्स के ऑर्गेन्स है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, इन सबको बनाना. ठीक है, ये सब टिश्यूज जब ज्वाइन होते हैं सो दे फॉर्म्स द रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. Now the next is organ system. A group of interconnected organs which work together to do big job for the organisms is called an organ system. जो एक दूसरे से कनेक्टेड ऑर्गेन्स हैं जो एक साथ मिलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का अगर एक भी पार्ट खराब हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी यूजलेस होती है ना. तो हमारा जितने भी ऑर्गन है वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, जिसके थ्रू वो वर्क कर रहा है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स मतलब जब पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज बनते हैं, सो दे फॉर्म्स द ऑर्गेनिज्म. सो इन शॉर्ट इफ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ऑर्गेनिजम्स. So an organism is an animal or a plant which can exist on its own, जो अपने आप exist होता है. An organism is made up of different organ system which work together to perform all the functions necessary for maintaining life. जितने भी life के लिए functions हैं वो सब किसके through होता है? Through the organisms. So I hope you have understood the chapter. So once again all of you read it.
all for today.